السلام علیکم ناظرین اور پروگرام میں خوش آمدید۔ آج وہ بڑی ملاقات ہو گئی جس کا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور سیاسی حلقے بڑی دیر سے توقع کر رہے تھے، یعنی مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی۔ اور آج اس ملاقات کے بعد جو باڈی لینگویج میں نے دیکھی اس میں یہ بہت واضح ہو گیا کہ اپوزیشن کو اپنی کامیابی کا یقین ہے، اور جو بداعتمادی پائی جاتی تھی مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان، یا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی قیادت میں، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ یہ خبر بھی ہے ناظرین کہ یہ بداعتمادی آج مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ جو گارنٹیز ہیں یا ذمہ داریاں ہیں وہ آصف علی زرداری نے اٹھائی ہیں، کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنی ہے، اور کچھ شہباز شریف صاحب نے میڈیٹ بھی کیا ہے اور کچھ گارنٹیز بھی لی ہیں یقینی طور پر۔ لیکن اس ملاقات کے حوالے سے اور پھر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک اور بڑے ٹاسک پر ہے، یعنی لانگ مارچ، تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی تیاریاں بھی شروع کر رکھی ہیں، اور تحریک عدم اعتماد بھی، یہ دو بڑے ٹاسک ہیں۔ اب اگر وہ لانگ مارچ میں بزی رہے گی تو پھر تحریک عدم اعتماد کون لائے گا؟ اور تحریک عدم اعتماد کے لیے جس سیاسی مشاورت کی یا سیاسی تحرک کی ضرورت ہے، ملاقاتوں کی، مورے پھر اپنی جگہوں پر رکھنے کی، اپنی اپنی جگہوں پر فٹ کرنے کی، وہ کون کرے گا؟ اور پھر لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے جو پبلک موبلائزیشن کرنی ہے، یا جس طرح اس کو ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، وہ کون کرے گا؟ اس کا ناظرین اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے آج ایک مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے، اس پر آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ اس میں وہ ذمہ دار ہیں لانگ مارچ کے۔ بلاول بھٹو زرداری ہولی سولی، یعنی کہ 100% انہی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے کہ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ مشاورت کر لیں، آصف زرداری سے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہی لانگ مارچ کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے جتنی کوآرڈینیشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے شازیہ مری صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ شیری رحمان صاحبہ، قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی، نجم الحسن خان، خانزادہ خان، جو ان کے اور جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان سب کی ذمہ داریاں اپنی اپنی لگا رکھی ہیں، اور وہ اس حوالے سے متحرک بھی کر رہے ہیں خود بھی لوگوں کو۔ کل وہ کراچی تھے، آج وہ کراچی سے آئے اسلام آباد، اور پھر سیدھے معاف کیجیے گا کراچی سے ہی سیدھے پشاور لینڈ کر گئے، جہاں انہوں نے ورکر کنونشن بھی کیا، احمد ولی خان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، اور پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کو جوائن کر لیا ہے اے این پی نے۔ یعنی اب اے این پی بھی ایک بڑا حصہ اس کے شرکاء کا لے کر آئے گی۔ اور میں نے آپ کو جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے نوڈیرو ہاؤس میں، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 1 لاکھ شرکاء کے لانے کا ٹارگٹ ہے۔ آج پھر پیپلز پارٹی کے حلقوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا مل کر لائیں گی، اور جماعتیں بھی اس میں شریک ہونے پر تیار ہیں۔ مثلا طاہر القادری کی جو ہے جماعت پاکستان عوامی تحریک، وہ بھی تیار ہے اس مدد کے لیے، اور وہ شریک بھی ہوں گے۔ پھر چونکہ نون لیگ کا اپنا بھی ایک ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی ناکام نہ ہو، کیونکہ یہ لانگ مارچ ایک ہو یا دونوں حکومت پر اثر انداز ہوں گے، تو نون لیگ بھی اس کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کوشاں ہوں گے، اور پھر جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اسی رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور تحریک عدم اعتماد کا تمام بوجھ یا فیصلہ سازی کا سارا اختیار اور تمام پولیٹیکل ہاب نابنگ کی ذمہ داری آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہی اس کو نمٹائیں گے۔ آج کی جو ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات تھی، وہ اسی جانب ایک اظہار بھی تھا کہ یہ گزشتہ روز میں نے اپنے چینل پر بھی خبر دی تھی، اور وہی ہوا۔
मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात में अकरम दुरानी साहब भी शामिल थे। असजद जो मौलाना साहब के छोटे साहबजादे हैं वो भी थे। मौलाना असद भी थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी अकेले थे। उनके साथ चूँकि पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं रुखसाना बंगे साहिबा, वो ज़रूर वहाँ गई मौलाना की रिहाइश का, लेकिन वो अंदर फैमिली के साथ बैठी रहीं। मौलाना की पोती ने गुलदस्ता पेश किया आसिफ अली जरदारी को। ये इस बात का इजहार था कि वो बदएतमादी जो एक अफसर के ट्रांसफ़र के हवाले से सिंध में पैदा हुई थी, या सिंध में उसे रिटेन करने के हवाले से पैदा हुई थी, और फिर चंद गाड़ियों के हवाले से पैदा हुई थी, वो अब ख़त्म हो गई है। और अब वो एतमाद का ताल्लुक दोबारा बहाल हो गया है। उसके अलावा जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसमें दोनों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते हैं कि सब्र करके लाई जाए, और आसिफ अली जरदारी भी ये चाहते हैं, और नून लीग ये चाहती है कि जल्दी ले आई जाए। तो इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मेरी इत्तला है, हो सकता है गलत हो, हतमी फैसला चूँकि शहबाज शरीफ के साथ आसिफ जरदारी की मुलाकात में होना है, लेकिन तय ये है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हो, तो उस वक्त कहीं टेबल हो तहरीक अदम एतमाद, और फिर उसके बाद उसके अगले मराहल तय किए जाएँ। क्योंकि अभी चंद चीज़ों को फिक्स करना बाकी है। अब वो आसिफ अली जरदारी ने अपने ज़िम्मे ली हैं कुछ चीज़ें, कुछ जगहों पर बात करनी है। अपोजिशन के लोगों के साथ तो बात हो ही रही है, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनमें से कुछ इत्तेहादियों के साथ अभी मज़ीद कुछ मामला तय करने हैं। कुछ मामला काफ लीग के साथ शहबाज शरीफ साहब जब गए थे, तो वो कुछ ऑफ़र्स देकर आए थे, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि गुज़िश्ता रोज़ भी काफ लीग का और आसिफ अली जरदारी साहब का रब्ता हुआ, और उस राब्ते में कुछ चीज़ें हुई, जिसके बाद आज फिर मौलाना फजल रहमान के साथ, और उस राब्ते के बाद गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ और आज की मुलाकात तय पाई। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान, जो अपनी अपनी जगह पर वो राब्ते कर रहे हैं, उसमें उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि उनको ये यकीन है कि उनकी तहरीक कामयाब होगी। कौन कौन इसका साथ देगा ये तो आगे आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन एक जो बुनियादी टास्क है, उस टास्क को नाकाम बनाने की ज़िम्मेदारी भी, जो बुनियादी टास्क है उसको अचीव करना है, और हुकूमत को नाकाम बनाने की ज़िम्मेदारी भी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने ली है। और कुछ ज़िम्मेदारी वो अब नून लीग के हवाले भी करेंगे। वो ज़िम्मेदारी है अदम एतमाद के लिए, अगर वोटिंग का मरहला आता है तो ऐवान में लोगों को पहुँचाने की। लेकिन उसमें जो चंद बातें और भी डिस्कस हो रही हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं नाज़रीन। एक तो पहले भी हमने बात की कि अपोज़िशन भी ये समझती है कि शायद इलेक्शन कमीशन को का फ़ैसला आने देना चाहिए, और ये मुतवक्को है मार्च के पहले हफ़्ते में हो सकता है आ जाए। और जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि फ़ैसला इमरान खान साहब के लिए सख्त हो सकता है। क्या सामने आता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस किस्म की सर्टिफिकेशन हो चुकी है, वो खबरें आती रही हैं। अकबर एस बाबर साहब भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, तो वो उस 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 तनाजुर में अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। और यही पीटीआई को भी खदशा होगा यकीनी तौर पर। पीटीआई हुकूमत में है, वो नाकाम बनाना चाहेगी इस तहरीक को। सियासी चूँकि ये मद्देनज़र है और फिर सियासी तहरीक है, तो वो सियासी मूव है, तो उसमें पीटीआई का ये पूरा हक है कि वो जवाबी इक़दामात करे। और वो जवाबी इक़दामात के लिए इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है आज जितनी वो कॉन्फिडेंट दिखाई दी है, वो क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है, या वो उनके कॉन्फिडेंस का अमली नतीजा क्या निकलता है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन एक और इत्तला जो हमें उठती उठती मिली अपोजिशन के ही हलकों से, कि वो ये कहते हैं कि उन्हें अपोजिशन के हलकों में भी ये तवक्को की जा रही है कि शायद असम्बलियाँ तोड़ने का कोई मरहला हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है। इमरान खान साहब की जो आज गुफ्तगू थी, जिस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंट अंदाज में ये कहा है कि घबराना नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। लेकिन सियासी मूव है, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब भी सियासतदान है और अब तक उन्होंने बहुत अच्छी सियासत की है, तो कुछ भी वो हो सकता है। कोई भी कदम जो इमरान खान साहब समझते हैं उनके लिए मुनासिब होगा, उनका उठाना उसका हक है और वो उठा सकते हैं।
लेकिन ये तय हो गया है कि अपोजिशन की जमातें एक पेज पर हैं। एमक्यूएम के साथ अभी कुछ मामलात होना बाकी लगते हैं। हकीकत क्या है ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता है जो हमारी बात हुई कई लोगों से, तो एमक्यूएम के साथ मज़ीद कुछ सिलसिला जुबानी होगा। वो कौन करेगा ये हम आपको कल बता सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक सियासी बदअतमादी की फ़ज़ा तो हाल ही में कराची में दिखाई दी थी। और एमक्यूएम ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई सियासी मूव है तो वो अपना कार्ड उसी वक्त शो करेगी जब उसको ये दिखाई देगा कि उस मूव के साथ देने में उसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान। ये सियासत है, जाहिर सी बात है, और ये कोई चैरिटी तो है नहीं, सियासत है। इसमें हर फरीक जो है वो अगर हुकूमत का साथ छोड़ता है या नहीं छोड़ता, वो अपना फैसला खुद करेगा। तो यही बुनियादी बात है। लेकिन मूव तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और मेरी इत्तला यही है कि शायद 8 से 10 मार्च के दरमियान नोटिस जमा हो। एक इत्तला ये भी है कि 24-25 मार्च तक नोटिस जमा कराना चाहते हैं अपोजिशन के बाद लोग, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर कुछ मुज़ाकरात करनी है, कुछ चीज़ें तय करनी है, तो फिर थोड़ा सा वक्त देना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी और आसिफ ज़रदारी ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वक्त दिया जाए, सोच समझ कर तरीक़त एतमाद लाई जाए, और ताकि ये इसकी नाकामी का एहतमाल ना हो। और मैं अभी भी इस मौका पर कायम हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद का कामयाब होना एक मुश्किल टास्क होता है हमेशा। बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल मौजूद है 1989 में, जब उन्होंने तहरीक एतमाद को 12 वोटों से नाकाम बना दिया था। तो देखिए पर्दा ज़रूर से क्या आता है, लेकिन आज यूँ समझिए कि अपोजिशन ने रोड मैप तैयार कर लिया है। बदएतमादी की फ़ज़ा जो अपोजिशन जमातों में थी वो ख़त्म हो गई है, और फिर अब तारीख़ का फ़ैसला वो कल जब शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे वो आसिफ ज़रदारी, तो और जो अपोजिशन का एलामिया है उसमें भी जो नुकात हैं उससे ज़ाहिर होता है कि सब ने अपनी अपनी ब्रीफिंग दी अपने अपने राब्तों की। तो उसके बाद ही तारीख़ का फ़ैसला होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात होनी है आसिफ ज़रदारी की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की अपने बड़े भाई के साथ गुफ्तगू होनी है। और ये भी मेरी इत्तला है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के दौरान ही आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी हो जाए, जिसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें तय पा जाएँ। तो देखिए अगले 24 से 48 घंटे इस हवाले से अहम है। मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।